Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exploring Civil Services. As I have already shared the strategy of 70 days daily answer writing of geography optional. So today's topic is Introduction to Geomorphology and Slope Development, which belongs from the unit Geomorphology. If you want to watch the strategy video, or if you want to know the further updates, or you want to ask anything, you can join the Telegram channel. All the links are available in the description box. So the first question is, in explaining the concept of pediplanation, King combined the ideas of Davis, Penck and Wood with his own. Elaborate. This question was asked in 2016 of geography optional paper, and it was of 20 marks. So first we will identify the keywords. So the first keyword, primary keyword, is pediplanation, and the name of propounder of cycle of erosion is King, Davis, Penck and Wood. And our secondary words is concept, which is underline, and the ideas and elaborate. So first we will introduce what is the crux of this question, what we are going to discuss. So we can write in this way: King's pediplanation is synthesis concept, which was based on Davis sequential development, Penck's debris control slope development, and Wood's slope elements and parallel retreat model. So when we will write the body of the answer, we can start like this: the major landscape is developed due to continuous retreat of hill slope and global tectonic events, which forms the parallel retreat. So parallel retreat means, as you can see the diagram in the right side, the parallel retreat of slopes can be designed as follows. And the fluvial process is a dominant agent of denudation or denudational process, which because happens because of gradient of slope, does not change over time, therefore the same parallel retreat develops. This is the reason why we find the parallel retreat, because the gradient of slope do not changes. So the stages of parallel retreat are mainly, there are three important stages. First is upliftment by tectonic force, vertical erosion of river. Second is lateral erosion, the river based pediment, and the third one is pediplanation formation. So when we can discuss further like this: Davis cycle stopped after peneplain, which we already know if we have already studied the Davis cycle of erosion. This question is basically the combination of all the cycles of erosion, like Davis cycle of erosion, King cycle of erosion, Penck cycle of erosion, and Wood cycle of erosion. So we have we must have the idea of all the cycles of erosion. As King said, erosional cycle begin with upliftment by tectonic forces. किंग ने ये कहा था, एंड साइकिल कंप्लीट विद द फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट, मतलब जब पेडिमेंट बन जाता है तब साइकिल कंप्लीट होता है. मैनी, जब बहुत सारे पेडिमेंट्स एक साथ बन जाते हैं और एक पेडिमेंट से मर्ज हो जाते हैं, तो फिर हम उसी को पेडिप्लेनेशन बोलते हैं. दैट इज मैनी पेडिमेंट्स फॉर्म्ड एंड मर्ज इनटू वन प्लेन इज कॉल्ड पेडिप्लेनेशन. अब इसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में छोटे छोटे पेडिमेंट्स है. अब जब ये एक साथ मर्ज हो गए तो यहाँ पे मर्जर ऑफ मैनी पेडिमेंट्स makes pediplanation, and again the cycle of erosion occurs. So combination of Davisian concept, like this was asked in King combined the idea of Davis, Penck and Wood. So we will answer this question: combination of Davisian concept. So how the Davisian concept is combined in this साइकिल ऑफ इरोजन, कैसे कंबाइंड हुआ? तो पहला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि यूज़ ऑफ डिवीजन सेक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल, इसका यूज़ हुआ है. किंग ने यूज़ किया है टाइम स्पेस सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, जो डेविस ने किया था. फिर उसके बाद किंग के पेडिप्लेनेशन में डेवलपमेंट यूज से मैच्योरिटी स्टेज में जाता है और मैच्योरिटी से ओल्ड स्टेज में आता है इन एन इरिवर्सिबल सीक्वेंस, मतलब वो रिवर्स नहीं होता है. और उन्होंने डेविस के ट्रांसपोर्ट कंट्रोल स्लोप डेवलपमेंट मॉडल को भी रिजेक्ट किया. और फिर उसके बाद थ्री टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म
यहाँ पे देखे जा सकते हैं। पहला मेसर्स एंड बुट्स, दूसरा है कॉनिकल हिल्स ऑफ वेरिंग साइज, इसमें जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो इंसेलबर्ग, बॉर्न हेड एंड कास्टल कोपीज बनते हैं। और थर्ड जो है वो जेंटली स्लोपिंग पेडिमेंट्स होते हैं जो मल्टी कॉनकेव स्लोप सरफेस पेडिप्लेन्स होते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड बता सकते हैं कि यूज़ ऑफ स्लोप डेवलपमेंट ऑफ मॉडल एंड वुड कैसे इस पेंक ने अपने आइडिया में कंबाइंड किया था। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बैक वास्टिंग की बात की थी, बैक वास्टिंग विच अकर्ड इन सुपीरियर मैनर एंड thus both bugens were formed. Later this slope shifts backward which plays an important role in slope development. वही जो स्लोप है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है और फिर नया स्लोप डेवलप होता है। फिर उसके बाद हम पैरेलल रिट्रीट मॉडल ऑफ वुड की बात कर सकते हैं कि उसको किंग ने ऐसे यूज़ किया था कि उन्होंने कहा था पेडिमेंट्स जो है वो रिप्लेस करता है अपर स्टीपर स्लोप एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद 4 आइडियल स्लोप एलिमेंट्स यूज़ हुए थे बॉर्नहार्ट के कॉन्सेप्ट में। सो बेसिकली ये पूरा आइडिया कंबाइंड किया था उन्होंने पेडिमेंट्स के आइडिया पे बेस करके। अब इसके लिए हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे ये किंग साइकिल ऑफ इरोजन, ये बेसिकली सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी के, कि कैसे हम लेफ्ट मोस्ट साइड से देखें तो कैसे अपलिफ्ट होता है, फिर धीरे धीरे यूथ स्टेज में जाता है, फिर मैच्योरिटी में आता है, फिर ओल्ड स्टेज में आता है। जैसे ही वो ओल्ड स्टेज में आता है फिर यहाँ पे टॉप में हम इंसेलबर्ग दे सकते हैं, बॉटम में हम पेडिप्लेन्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे हम बॉर्न हेड देख सकते हैं जो राइट साइड में है। जो बॉटम की लाइन है डॉटेड लाइंस वो एल्टीट्यूड ऑफ मेन वैली फ्लोर्स दिखाता है, जो टॉप की डॉटेड लाइन है वो एल्टीट्यूड ऑफ हाईएस्ट डिवाइड दिखाता है। राइट एक्सिस पर हमने टाइम प्लॉट किया है, लेफ्ट और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पर हमने एल्टीट्यूड प्लॉट किया है। ये किंग का साइकिल ऑफ इरोजन है। अब एक हम और बना सकते हैं चाहे तो डेविड साइकिल ऑफ इरोजन, यहाँ भी ऐसे ही होता है, लास्ट में यहाँ पे पेनी प्लेन्स बनते हैं। फिर ऐसे ही हम पेंक के साइकिल ऑफ इरोजन बना सकते हैं अगर अपने आंसर को और अच्छा बनाना हो। यहाँ पे कैसे वैक्सिंग डेवलपमेंट से वेनिंग डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे आगे चल के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब कंक्लूज़न में हम ये लिख सकते हैं कि किंग ने बहुत सारे डेविस के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था और उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन का एक नया फॉर्म शो किया था और एक नए तरह से लैंडस्केप को इंटरप्रेट किया था। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया था साउथ अफ्रीका का। सो बेसिकली उनका मॉडल जो था वो पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप पे बेस्ड था, एंड जो रिजल्टिंग कांस्टेंट आया था वो स्लोप ऑफ सरफेस पे ही बेस्ड था। अब हमें कुछ और अगर इसमें ऐड करना हो अपने आंसर में तो हम ये लिख सकते हैं कि किंग का जो स्लोप प्रोफाइल था वो बेस्ड था वैक्सिंग स्लोप पे विच वाज कॉन्वेक्स एंड मोर ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हाई स्लोप। सेकंड जो था वो फ्री फेस पे था, यहाँ पे बेड रॉक आउटक्रॉप्स हुए थे। थर्ड जो था वो डेब्रिज स्लोप था जहाँ पे रिट्रीटिंग विद फ्री फेस हुए थे। फोर्थ जो था वो वेनिंग स्लोप था जहाँ पे पेडिमेंट्स का फॉर्मेशन अभी हमने देखा था, और ये कॉनकेव और शीट वॉल्स पे बेस्ड था। और अगर हमें कुछ और डायग्राम्स बनाने हो तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे माउंटेन फ्रंट है, फिर उसके बाद डेब्रिस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर लास्ट में पेडिमेंट्स और पेनी पेडिमेंट्स बन रहे हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पेडी प्लेन बना रहा है। तो यही बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें लिखना था। और पेडी प्लेन भी पहले भी हमने बता दिया था कि रिलेटिवली फ्लैट फ्लॉक होता है और बहुत सारे पेनी प्लेन्स से मिल के पेडी प्लेन्स बनता है, और इसी को हम पेडिप्लेनेशन बोलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। बहुत मैनी पेडिमेंट्स फॉर्म मर्ज इनटू वन पेडिमेंट, वन प्लेन इज नोन एज पेडिप्लेनेशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है द नॉलेज ऑफ स्लोप एनालिसिस हैज़ लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन द स्लोप मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया था 15 मार्क्स में। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कीवर्ड्स है जो इनसर्कल किए हुए हैं वो स्लोप एनालिसिस और स्लोप मैनेजमेंट, और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन है। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि स्लोप एनालिसिस क्या होता है, स्लोप मैनेजमेंट में उसका क्या रिलेशन है,
इन दोनों को रिलेट करके हम इसका एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब स्लोप एनालिसिस जो है वो हम मेनली डेविस, पेंक और किंग के आइडियाज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है लैंड फॉर्म्स का और उसके नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं, जबकि मैनेजमेंट जो होता है वो फोकस करता है कि कैसे हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ से डील कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब ये जो है वो हम लिख सकते हैं कि यूजेज ऑफ टेरेस कैसे होते हैं, बेंचेस कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग स्लोप एंड एंगल्स को कैसे मैनेज करते हैं, ड्रेनेज, फ्लड, इन सब को कैसे मैनेज करते हैं, ओवर क्रॉपिंग को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये हमारा सब स्लोप मैनेजमेंट में आएगा। अब इसके बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं कि द स्लोप एनालिसिस जो है वो ये भी सजेस्ट करता है कि हमें स्लोप के इरोजन से कैसे बचना है, स्लोप के सरफेस रन ऑफ से कैसे बचना है, जब किसी सॉयल का टॉप मोस्ट लेयर अगर डिटैच हो जाता है तो उससे कैसे बचना है। इन सब के एनालिसिस को करके हम फॉर्म्स ऑफ स्लोप दिखाते हैं और फिर जो वहाँ का कंटूर होता है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, और इससे फिर हमें उस एरिया के लैंडफॉर्म का अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन के बारे में भी पता चलता है। अब हमें अगर इसके बारे में दिखाना हो कि स्लोप एनालिसिस जो है वो स्लोप मैनेजमेंट को कैसे उसका लिमिटेड एप्लीकेशन है, तो हम इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे स्लोप एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं स्लोप एनालिसिस के। समिटल कन्वेक्सिटी जिसको हम अपर वॉश स्लोप बोलते हैं, दूसरा होता है फ्री फेस या ग्रेविटी स्लोप, तीसरा होता है लेक्टिलिनियर या डेब्री स्लोप, चौथा होता है बेसल कॉन्केविटी या लोअर वॉश स्लोप। अब ये एलिमेंट्स जो है वो बहुत कम अप्लीकेबल हो पाते हैं हमारे अनइवन टोपोग्राफी में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैनी फैक्टर्स फॉर देयर इवेल्युएशन। तो ये भी हमें एक स्लोप मैनेजमेंट में एक लिमिटेशन खड़ा करता है। सेकंड जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ जो मास वेस्टिंग, शीट वॉश, रेन वॉश, डेनुडेशन ऑफ स्लोप, जनरेशन ऑफ डेब्रिस, ये सब जो है ये हमें रॉक मैकेनिक्स को समझने के लिए या जियोफिजिकल फेनोमिनन्स को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेवलप करते हैं, जिसके वजह से हमें स्लोप मैनेजमेंट को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा बायोटर्बुलेशन प्रोसेस होते हैं उसके वजह से बायोटिक प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसके वजह से फिर हमें स्लोप मैनेजमेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है। सो मतलब फेल्योर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बायोटर्बुलेशन प्रोसेस भी स्लोप मैनेजमेंट को समझने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि स्लोप जो है वो अंडर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम में डेवलप होता है, कि जैसे हमने देखा था स्लोप डिक्लाइन डेविस ने बताया था, स्लोप रिप्लेसमेंट पेंक ने बताया था, स्लोप पैरेलल रिट्रीट किंग ने बताया था। तो ये बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं, इसीलिए इनके डिफरेंट व्यूज़ भी हैं। तो हम एक ही व्यू को हर स्लोप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि स्लोप मैनेजमेंट इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ रेगोलिथ, मोबिलिटी ऑफ रेगोलिथ, थिकनेस, एक्सपोजर ऑफ स्लोप सरफेस, कैरेक्टर ऑफ स्लोप्स, लिथोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड फीचर्स, एंगल ऑफ स्लोप, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रिवाइवल ऑफ एक्सप्लोजर ऑफ लैंड फॉर्म्स, वेदरिंग एंड डेनुडेशनल प्रोसेस, ये सारे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट फीचर्स कैरी करते हैं। तो एक ही स्लोप एनालिसिस से हम उस एरिया का स्लोप मैनेजमेंट नहीं डिसाइड कर सकते। अब स्लोप मैनेजमेंट के लिए छोटा सा मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लो चार्ट्स भी अपने आंसर्स में बना सकते हैं, कि जैसे हमने एक बीच में बॉक्स बना दिया, स्लोप मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स लिख दिया, और फिर साइड साइड में हमने एरो दे के लिख दिया कन्वेंशनल नॉलेज ऑफ स्लोप एनालिसिस, बहुत कन्वेंशनल है, उसको मॉडर्न अप्रोच हमें देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें स्लोप मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। फिर थर्ड हमने लिख दिया लैक ऑफ कंप्यूटेशनल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रॉक मैकेनिक्स एंड लिथोलॉजी। फिर फोर्थ हमने लिख दिया कि लैक ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ सर्वेइंग एंड कंटूर मैपिंग। इन सब की वजह से भी हमें स्लोप मैनेजमेंट को फिगर आउट करने में प्रॉब्लम होती है।
फिर एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं कि स्लोप एनालिसिस जो है वो लेसर फील्ड एप्लीकेशन में है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइम के क्रिस्ट एंड ट्रफ मिलते हैं किसी एरिया में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैली बॉटम्स होते हैं, डायनेमिक एंगुलर इंक्लिनेशन ऑफ माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन्स होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस बहुत सारे होते हैं, रिजुविनेशन होते हैं, रिहेबिलिटेशन होते हैं, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो स्लोप एनालिसिस करते टाइम हम उसको डायरेक्टली स्लोप मैनेजमेंट में नहीं यूज़ कर सकते। फिर उसके बाद इसी पूरे कॉन्सेप्ट जो स्लोप मैनेजमेंट का है या स्लोप एनालिसिस के लिए है, उसको जो चार मेन एलिमेंट्स है उसके लिए हम ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। टॉप में जो है समिटल कन्वेक्सिटी है, फिर फ्री फेस है जिसमें बोशगन का फॉर्मेशन होता है, फिर थर्ड है रेक्टिलिनियर स्लोप जिसमें कि हम डेब्रिस स्लोप या स्ट्रेट स्लोप बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप होगा। फिर फोर्थ जो है वो बेसल कॉन्वेक्टिव या पिडमाउंट का फॉर्मेशन होता है जो लोअर वॉश स्लोप में होता है। ये एक आइडियल स्लोप का प्रोफाइल है। फिर कंक्लूज़न में हम क्या लिख सकते हैं? कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि स्लोप मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट और वो ओपन सिस्टम कॉन्सेप्ट, ये कोई क्लोज सिस्टम कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जो प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म प्रोसेस है, ये इसको हम एक पॉली अप्रोच करके देखना चाहिए, एक पॉलीसाइक्लिक रिलीफ करके देखना चाहिए, ना कि मोनोसाइक्लिक रिलीफ करके देखना चाहिए। तभी हम स्लोप मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और हमारा स्लोप एनालिसिस का भी जो स्टडी है वो काम आएगा स्लोप मैनेजमेंट में। अब इसके एग्जांपल के लिए हम दामोदर वैली का एग्जांपल दे सकते हैं कि जो कि हज़ारीबाग और झारखंड में है। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में यही लिखना था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में एक्सप्लोरिंग सिविल सर्विसेज, उसका ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने भी कुछ अपने आंसर में कुछ नया लिखा है तो आप प्लीज़ म्यूचुअल रिव्यू के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस आंसर में कुछ गलतियाँ लगे तो भी आप मुझे बिल्कुल फ्रीली बता सकते हैं। So thank you so much for watching this video. I hope you liked it. If you want more content like this, you may subscribe this channel and like and comment the relative things. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a beautiful day.